Children, today we are going to start a new poem from your English NCERT book, Unit 5. The name of the poem, as we can see, is The Lazy Frog. So let's start our poem. On a school day, you are busy studying, playing, and chatting with friends. When you have a holiday from school, what do? Would you behave a little like a frog in the following poem? Let's see. Fred is a very lazy frog who lolls all day upon a log. He always manages to shirk doing a single stroke of work. His poor old mother calls in vain. Come in and help. He does not bother to move 2 inches, much preferring to be extremely hard of hearing. He lies there in a silent heap and stays conveniently asleep. If a lady frog hops past, you would think he would get up at last to bow and help her on her way, but no, I am ashamed to say that when a lady frog comes by, he does not open up one eye. This poem is written by Anonymous. Anonymous is when we don't know the name of the writer, we don't know who has originally written this poem, so we are saying we don't know. So Anonymous means we actually don't know who is the writer. So now children, let's start with the explanation of the poem, The Lazy Frog. On a school day, जब हमारा स्कूल होता है, जब बच्चों का स्कूल होता है, on a school day, you are busy studying. हम पढ़ाई में बिजी होते हैं, आप पढ़ाई में बिजी होते हो. Playing and chatting with friends. आप प्ले करते हो, you are busy in playing and chatting, बातें करने में with friends हम बिजी होते हैं. When you have a holiday, but जिस दिन आपका holiday होता है, आपकी छुट्टी होती है from school से what do? तब आप क्या करते हो? Would you behave a little like the frog? क्या आप behave करते हो किसकी तरह? Little frog की तरह. Like in this following poem, जैसे कि इस poem में little lazy frog करता है. क्या आप भी उसी की तरह थोड़े lazy हो जाते हो on a holiday? Let's see. Fred is a very lazy frog who lolls all day upon a log. Fred is the name of the frog who is very lazy. Fred नाम है किसका? Frog का. You can see in the picture. This is Fred, the frog. ये Fred है frog who is very lazy, जो बहुत ही आलसी है. Who lolls all day upon a log. Lolls means होता है to lie around lazily, means ऐसे ही आलस में पड़े रहना. Who lolls all day, पूरे दिन वो इसी तरह आलस में पड़े रहता है. Upon a log. A log is a piece of wood. ये wood होता है ट्री का. ट्रंक होता है जो पार्ट उसका कटा हुआ हो. You can see in the picture, this is log, piece of tree. ये ट्री का पार्ट है log, ट्रंक ऑफ ट्री. Who lolls all day upon a log. और वो इसी तरह पूरे दिन लेजीली आलस में पड़ा रहता था. He always manages to shirk doing a single stroke of work. He always manages करना किसी तरह वो संभाल लेता था. To shirk यानी काम से बचना. To not do something you should do. जो काम हमें करना चाहिए we should do, we are not doing that. हम वो नहीं कर रहे हैं, तो वो हमेशा किसी न किसी तरह बच जाता था अपने कामों से. Doing a single stroke of work. Single यानी एक भी, stroke of work यानी काम. वो इस तरह से अपने आप को बचा लेता था कि उसे दिन भर में एक भी काम ना करना पड़े. His poor old mother calls, यानी उसकी जो old mother थी, जो बूढ़ी माँ थी, वो calls, वो उसको कई बार बुलाती थी. In vain. Vain means vain. Vain means uselessly, बेकार. यानी उसकी माँ जब उसे बुलाती थी काम में तो उसका बुलाना व्यर्थ जाता था, बेकार जाता था. Come in help.
उसकी मदर कहती थी कम इन एंड हेल्प, आओ और मेरी मदद करो। ही डज नॉट बॉदर, पर उसे कोई भी उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। किसको? फ्रेड को, बिकॉज फ्रेड इज़ अ वेरी लेज़ी फ्रॉग, वो बहुत ही आलसी था। उसकी मदर उसकी बूढ़ी माँ से बुलाती थी पर वो सब बेकार जाता था बुलाना। वो कहती थी कम इन एंड हेल्प, आओ मेरी हेल्प करो, बट ही डज नॉट बॉदर, पर उसको तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग, और वो कैसा बन जाता था? एक्सट्रीमली, बिल्कुल ऐसे हार्ड ऑफ हियरिंग, सॉरी, टू मूव 2 इंचेस मच प्रिफरिंग। टू मूव 2 इंचेस, उसकी मदर बुलाती थी कम एंड हेल्प मी, बट ही डज नॉट बॉदर, और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। टू मूव 2 इंचेस, कि वो अपनी जगह से 2 इंचेस 2 इंच भी मूव कर जाए, हिल जाए, अगर उसकी माँ से आवाज़ दे रही है तो। मच प्रिफरिंग, बल्कि वो इसकी जगह प्रेफर क्या करता था? टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग। एक्सट्रीमली यानी बहुत बुरी तरह से, हार्ड ऑफ हियरिंग, हियरिंग मीन्स सुनना, एंड हार्ड ऑफ हियरिंग मीन्स बिल्कुल किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना, अनसुना कर देना। तो वो मूव 2 इंचेस 2 इंच हिलने की बजाय भी ये प्रेफर करता था कि मैं इस चीज़ को किस तरह से अनसुना कर दूं, पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता था अपनी माँ की आवाज़ को, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। ही लाइज देयर इन अ साइलेंट हीप। हीप क्या होता है बेटा? यस, हीप होता है आप तरह का एक तरीके से, आपने जब एक लीफ वगैरह का आप एक झुंड बना लेते हो, बंडल बना लेते हो, और आराम से उन पे साइलेंटली हीप यानी कि आराम से बिना किसी शोर के आप वहाँ रहते हो। ही लाइज देयर, वहीं पड़े रहता था वो, इन अ साइलेंट हीप एंड स्टेज कन्वीनियंटली अस्लीप, और वहाँ वो क्या करता था? कन्वीनियंटली, बड़े ही आराम से मज़े में, अस्लीप, सो जाया करता था और रेस्ट करता था। If a lady frog hops past, see in the picture as we can see, lady frog hops past. Hops means जंप करना होता है, यहाँ फ्रॉग का मतलब है, हॉप्स बाय का मतलब है वो चल के जा रही है। इफ़ अ लेडी फ्रॉग हॉप्स पास्ट, यानी पास से गुजरना। अगर कभी भी कोई भी लेडी फ्रॉग हॉप्स पास्ट, उसके पास से गुजर रही होती थी, यू वुड थिंक ही वुड गेट अप एट लास्ट। आपको लगता है, यू वुड थिंक, क्या आपको लगता है कि ही वुड गेट अप एट लास्ट, कि वो उठ के एक बार बैठ जाएगा ताकि मेरी इंसल्ट ना हो कि अरे ये तो इतना यंग है और ये तो पूरे दिन यहाँ पड़ा रहता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई भी लेडी फ्रॉग आ रही है या जा रही है। ही वुड नॉट गेट अप, वो बिल्कुल भी नहीं खड़ा होता था। टू बो मीन्स टू, यस, टू बेंड योर, यस, जब भी आप अपने हेड को, अपने सर को बेंड करते हो, टू गिव समवन रिस्पेक्ट, सर को झुका के किसी को रिस्पेक्ट देने को हम कहते हैं बो। वो कभी भी ऐसा नहीं करता था टू बो एंड हेल्प हर ऑन हर वे, कि मैं पूछ लूँ उनके वे में, उनके रास्ते में उनको हेल्प कर दूँ अगर कोई लेडी फ्रॉक जा रही है तो। नो, वो ना तो कभी उनके लिए बो करेगा, कभी अपने हेड को क्या करता था, उनको रिस्पेक्ट शो करने के लिए अपने हेड को बेंड भी नहीं करता था, सर भी नहीं झुकाता था, और पूछता तो कभी था ही नहीं कि उनको कोई हेल्प की ज़रूरत है भी या नहीं। बट नो, लेकिन ऐसा होता ही नहीं था। आई एम अशेम टू से, मुझे ये कहते हुए बहुत शर्मिंदगी होती है, दैट व्हेन अ लेडी फ्रॉक कम्स बाय, कि अगर कभी लेडी फ्रॉक, कोई भी एक लेडी फ्रॉक कम्स बाय, आसपास से गुजर भी रही होती थी या आ रही होती थी, ही डज नॉट ओपन अप वन आई, ही वॉज सो लेजी, फ्रेड इतना आलसी था, ही डज नॉट ओपन, कि वो एक आँख भी नहीं खोलता था अपनी, वन आई, एक आँख खोल के भी नहीं देखता था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ही वॉज सो लेजी दैट ही डज नॉट ओपन अप वन आई, एक आँख भी नहीं खुलती थी। सो फ्रेड वॉज अ वेरी लेजी फ्रॉग। एंड एज आई टोल्ड यू, दिस पोएम वी डोंट नो द नेम ऑफ द राइटर, तो हम कहेंगे ये किसी अनजान व्यक्ति ने लिखी है।